जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कैसा लगे आपको जब गुरु जी आपको चुने अपनी मुट्ठी भर संगत के लिए। गुरु जी आपको चुने अपनी सबसे प्यारी संगत के लिए और गुरु जी को आप सबसे प्यारे लगो, कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियस अच्छा लगेगा। तो चलिए आज अपना आंकलन करें गुरु जी की नज़र से कि गुरु जी को अपनी संगत में जो चाहिए, क्या वो चीज़ें आपके अंदर हैं। गुरु जी कहते जेड़ी मेरी संगत है ना, जे वो मुट्ठी भर संगत बनना चाहती है तो सब तो पहला ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ 7 ਵਾਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ 6 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਗੇ, ਕੰਮ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹੇ 1 ਵਾਰ ਕਰੇ ਚਾਹੇ 7 ਵਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੇ ਪਿਓ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਉਹ ਆਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੜਾ ਬਣਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਬਰਡਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ
ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਕੀ ਖਿਲਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕਰ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ। ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੂਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਗੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹੀਓ ਲੰਗਰ ਬਣਾਓ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ, ਬਸ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਲਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲਿਓ। ਨੱਚੋਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚੇਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੱਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਣ। ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁਡਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। संगत जी, अगर आप गुरु जी की संगत बनना चाहते हैं तो ये करें। गुरु जी के जो भाव हैं उनको समझें, सच्चे बने, सिंपल बने, साफ बने, बस सिमरन करें, गुरु जी का मंत्र जाप करें, सत्संग करें, सत्संगी लोगों के साथ उठे बैठें। अपने साथ लोग ही वो रखिए जो उठते बैठते हंसते हों, खुश रहते हों। उन लोगों के साथ बैठे जो दूसरे लोगों की बुराई ना करते हों, दूसरे लोगों में कमियां ना देखते हों, दूसरे लोगों की आपके आगे आके बात ना करते हो, क्योंकि अब वो दूसरे के आगे जाके आपकी बात भी करेंगे। ये लोग आपका माइंड डिस्टर्ब कर देंगे। दूसरों को देख के जो जेलस फील करते हैं, सड़ते हैं, वो आपसे भी सड़ेंगे। दूसरों को जो नीचा दिखाते हैं वो एक दिन आपको भी नीचा दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी, झगड़ालू लोगों से दूर रहो। जो लोग झगड़ा करने को अपना परम सिद्ध अधिकार मानते हैं, उनसे दूर रहो। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक अंकल जी के शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। कुछ उन्होंने अपनी आवाज़ में भेजे हैं और कुछ उन्होंने लिखकर, वो लिखने वाले मैं पढ़ूंगी, पहले अंकल की आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरु जी शंकर जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी, मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना चाहता था, बट बहुत बार कोशिश किया, मैं कर नहीं पाया और काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी देर कर दी शुक्राना सत्संग शेयर करने में। और मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो मेरे बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड है। मेरे बच्चे का जो हेल्थ है वो ख़राब हो गया था और मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि पुत्र तेरे बच्चे के ऊपर बड़ा कष्ट है, मैं इसको छोटे में काटूंगा, तू सत्संग सुन।
और इससे रिलेटेड जो है मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुने हैं, गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं। मेरे बच्चे का हेल्थ जो है वो बड़ा इशू था, वो गुरुजी ने बहुत छोटे में कटवाया है। ऐसा ही क्या हुआ संगत जी, कुछ टाइम पहले मतलब 2-3 सप्ताह पहले मेरे बच्चे के पेट में काफ़ी दर्द हुआ और वो खाना वगैरह जो है वो ठीक से खा भी नहीं रहा था और वॉमिटिंग भी कर रहा था बीच बीच में, फिर और स्टूल पास करने के लिए बार बार वॉशरूम भी जा रहा था। तो मैंने डॉक्टर से दिखाया, उसका डॉक्टर ने बोला टेस्ट कराने को, टेस्ट करवाया तो उसके लीवर में सूजन आया हुआ था। तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखा और जो डायरिया वाला सिम्टम्स की वजह से उसकी बॉडी में पानी की कमी हो गई। गुरुजी ने इमिडिएटली जो है ड्रिप भी लगवा दिए। गुरुजी की कृपा से सब कुछ इजीली हो गया और फिर कुछ दिन दवाई चला। 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद डॉक्टर ने फिर से बुलाया और फिर से बुलाने के बाद जो है हमने जो दवाई की जो कोर्सेज थे वो पूरे किए थे और उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, फिर से टेस्ट करवाया तो वो बिल्कुल जो लीवर का जो रेंज था वो रेंज के पास आ गया था। जो टेस्ट करवाया था तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल के पास थी। तो इसको मैं गुरुजी का शुक्राना ही चमत्कार ही समझूंगा कि गुरुजी ने मतलब अपने चमत्कार से इस चीज़ को, बहुत बड़े चीज़ को छोटे में काट दिया, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता था। और गुरुजी ने इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए और सत्संग सुना करके ये कष्ट बहुत छोटा में काट दिया और हमें पता भी नहीं चला। आज हमारा बच्चा बिल्कुल खा रहा है, पी रहा है, सही से रह रहा है। और गुरुजी से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि गुरुजी हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर जो है आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और जो आंटी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनके ऊपर भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखें गुरुजी महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी। जय गुरुजी अंकल जी। तो अंकल जी का मैं एक और शुक्राना सत्संग पढ़ती हूँ। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपनी एक्टिवा से कहीं जा रहा था। अचानक मेरे आगे जो रिक्शा चल रहा था उसने बिना संकेत दिए बाईं ओर मुड़ गया। मैं भी उसी के पीछे आ रहा था तो मुझे भी अपनी गाड़ी को अचानक दाईं तरफ मोड़ना पड़ा। इस दौरान मेरे बाएं हाथ की एक उंगली में हल्की चोट लग गई, लेकिन गुरुजी की कृपा से बाल बच गया। मैं गुरुजी का अनंत शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी का आशीर्वाद दिया। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये सत्संग दीपा आंटी तक पहुँचे और गुरुजी दीपा आंटी को ढेरों सारी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करे। जय गुरुजी। वाह 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 अंकल, ये तो मैंने अभी पढ़ा। और एक और शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रहा हूँ। गुरुजी का हुक्म हुआ है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग साझा कर, क्योंकि कई दिनों से मैं अपना सत्संग साझा नहीं कर पा रहा था। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि एक दिन मेरा बेटा मेरे भाई के स्टडी रूम में खेल रहा था। वह स्टडी टेबल पर चढ़ गया और गुरुजी के स्वरूप के पीछे से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी समय गुरुजी का स्वरूप अचानक नीचे गिर गया और ज़मीन पर आकर उनके शीशे के फ्रेम पूरी तरह टूट गया। इसके तुरंत बाद मुझे एक संदेश जैसा अनुभव हुआ, जो भी हुआ तेरे भले के लिए हुआ। संगत जी, ऐसी घटनाओं से संबंधित गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था कि जब गुरुजी का स्वरूप टूटता है तो वह किसी बहुत बड़े कष्ट को टालने का संकेत होता है। मैं गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे पर आने वाले बहुत बड़े संकट को अपने ऊपर ले लिया और मेरे बेटे को पूरी तरह सुरक्षित रखा। मैं दीपा आंटी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वह मेरा सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाती हैं। गुरुजी दीपा आंटी को ढेरों आशीर्वाद दें और उनकी हर इच्छा पूरी करें। जय गुरुजी, जय संगत जी। थैंक यू अंकल जी। और इन्होंने बड़े दिनों से भेजे हुए छोटे छोटे, तो गुरुजी ने कहा आज सारे इनके सुना दे। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी का हुक्म हुआ है कि शुक्राना सत्संग साझा करने का। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है यह है कि मेरे घर में बहुत ज़ोर की फैमिली
मेंबर्स के बीच लड़ाई हुई और यह सब मेरी माँ नहीं देख पाई। उनके चेस्ट में तेज़ दर्द हो गया और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। तभी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उन्हें पिलाया और मंत्र जाप करने लगा। घर के सारे लोग उन्हें बचाने में लग गए। कुछ ही समय में उन्हें होश आ गया और हार्ट में जो दर्द था वह भी कुछ देर में ठीक हो गया। वे बिल्कुल सामान्य हो गई। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी माँ को नई ज़िंदगी का आशीर्वाद दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये सत्संग दीपा आंटी आप सभी संगत के बीच साझा करें और गुरुजी उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग दे। थैंक यू अंकल, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक अगला अंकल का शुक्राना सत्संग कि जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रहा हूँ। गुरुजी का हुक्म हुआ है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे घर में तनाव का माहौल बना था क्योंकि मेरी वाइफ को बाहर जाने का प्लान था। गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी। इतनी गर्मी में लंबी यात्रा करने से मैं बचना चाह रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अब आपको ही सब करना है। 2-3 दिन के अंदर ही गुरुजी की कृपा से एक 4 स्टार रिजॉर्ट की टिकट बुक हो गई। मेरा भाई परीक्षा के कारण नहीं जा पाया और माँ का मन भी नहीं था क्योंकि उनके ब्यूटी पार्लर का स्टाफ उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अंततः वे भी तैयार हो गई। मैं, मेरी वाइफ, बच्चे और मम्मी पापा सब वहाँ गए और 2 दिन तक बहुत आनंद लिया। यह रिजॉर्ट हमारे घर से 2-2.5 घंटे की दूरी पर था और हमारी यात्रा भी बेहद सुंदर रही। गुरुजी की कृपा से पूरे घर का माहौल बदल गया, सब बहुत खुश रहने लगे। मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ। साथ ही मैं दीपा आंटी से भी निवेदन करता हूँ कि मेरा यह शुक्राना सत्संग आप संगत तक पहुँचाएं। गुरुजी दीपा आंटी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। जय गुरुजी संगत जी। देखिए, इन्होंने गुरुजी पे सरेंडर कर दिया ना, तो गुरुजी ने भी कैसे इनका साथ दिया। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रहा हूँ। गुरुजी का हुक्म हुआ है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करूँ। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा एक रिटेल शॉप है और कई कस्टमर आते थे जिन्हें EMI पर प्रोडक्ट चाहिए होता था, तो मैंने बजाय फाइनेंस के साथ कोलैबोरेट करने का सोचा। कई बार कोशिश करने के बाद भी मेरा डीलर कोड ओपन नहीं हो पा रहा था। मैंने मैनेजर से बात की, फिर भी बात नहीं बनी। हेड ऑफिस को भी ईमेल किया और गुरुजी से भी अरदास लगाई। कुछ ही समय में मेरा डीलर कोड ओपन हो गया और बजाय फाइनेंस के साथ पार्टनर बन गया। मैं बजाज फाइनेंस के साथ पार्टनर बन गया, जिससे मेरे कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदना आसान हो गया। यह सब मेरे गुरुजी की कृपा से हुआ है, क्योंकि पहले कई बार किसी न किसी वजह से मेरा काम रुक जाता था और मैं निराश हो जाता था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अब आपको ही देखना है। कुछ ही समय के बाद मेरे सारे प्रोसेस पूरे हो गए। मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ। मैं दीपा आंटी से भी निवेदन करूँगा कि ये मेरा शुक्राना सत्संग आप संगत तक पहुँचाए और गुरुजी दीपा आंटी को ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना अंकल जी के छोटे छोटे 2 सत्संग और रह गए हैं। संगत जी, ये बात 1 हफ्ते पहले की है, जब मेरी पूरी फैमिली एक टूर पर गई थी। लगभग 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद मेरी वाइफ को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा और उन्होंने गाड़ी धीरे करने को कहा। जैसे ही हमने गाड़ी धीमी करनी शुरू की, मेरी वाइफ ने अचानक कार का राइट गेट खोल दिया। उसी समय सामने से एक बाइक वाला तेज़ स्पीड से आ रहा था, लेकिन वह बहुत ही मुश्किल से गाड़ी के बगल से निकल गया। मेरी वाइफ कुछ दूरी की वजह से बच गई, वरना उस दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था और उनकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन गुरुजी की अपार कृपा से बाल बच गई। और अंकल जी का लास्ट। संगत जी, मेरे घर में तनाव का माहौल बन गया और मेरी वाइफ और मेरी मम्मी के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। इस बात को 4-5 दिन हो गए थे। असल में बात यह है कि मेरी वाइफ मेरी मम्मी के लेडीज़ पार्लर में काम करती है। किसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हो गया और दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई। घर का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया और सबका मूड बदल गया। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अब आपको ही सब संभालना है। गुरुजी की कृपा से दोनों आपस में फिर से मिले और बातचीत दोबारा शुरू हो गई। गुरुजी की कृपा से पूरा घर फिर से खुशहाल हो गया और सब लोग बहुत खुश रहने लगे। मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ। मैं दीपा आंटी से भी निवेदन करता हूँ कि मेरा ये शुक्राना सत्संग संगत तक पहुँचाएँ और गुरुजी दीपा आंटी को ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी अंकल जी, थैंक यू सो मच।
इतने प्यारे प्यारे सत्संग हम सबके साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारी संगत को उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो चलिए संगत जी, जो हो गया उसको भूलें, आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। गुरु जी की अच्छी संगत बनने के लिए कोशिश करें। जो जो चीज़ें आप में नहीं है उनको आप अडेप्ट करें, गुरु जी की संगत बने, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन और गुरु जी को सरेंडर करें। जैसे आप कह देंगे ना गुरु जी अब आपने संभालना है, गुरु जी संभाल लेते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।